Well, the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has landed himself in a controversy after misquoting the Ramayana during a rally in Vishwasnagar. Addressing his supporters, Kejriwal made a mention of Sita's kidnapping and how a golden deer was used to lure and distract Lord Ram in the process. Now, while the Aam Aadmi Party convener actually wanted to draw an analogy with the BJP, trying to say that the promises made by the Saffron Party are equally elusive and fake, he ended up making a self-goal. Instead of saying that it was a demon who transformed a deer, he mentioned an epic. Kejriwal ended up saying that it was Ravan. Listen in to what he said. तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बनके आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था, लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। Now, the faux pas by the Aam Aadmi Party convener has armed the BJP. In an election where there is neck-and-neck fight for the Hindu vote, the BJP is now citing this to allege that Kejriwal's bhakti is pretentious and limited only to elections and votes. And that's the reason why he continues to make such mistakes. चुनावी हिंदू अरविंद केजरीवाल जी को रामायण तक के बारे में नहीं पता है। इनके दिल की इच्छा यही है कि ये तुष्टीकरण करना चाहते हैं। जो प्रभु श्री राम के अयोध्या में बन रहे मंदिर के वक्त कहा करते थे कि प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इनकी दादी और नानी कहती थी कि वहां पे मंदिर नहीं बनना चाहिए। और अब चुनाव के करीब राहुल गांधी से इंस्पायर होकर चुनावी हिंदू बनने का प्रयास कर रहे हैं। उनके रामायण के ज्ञान ने ये बता दिया कि उनके कण-कण में तुष्टीकरण है और उनकी हिंदू आस्था सिर्फ चुनावों को दिखाने के लिए है। दिल्ली का सनातनी अरविंद केजरीवाल जी के इस अल्प ज्ञान को, इस तुष्टीकरण के प्रेम को जवाब देगा। प्रभु श्री राम कर देते हैं सबका काम। ये कपटीवाल को अब रामायण भी भूल गई। ये रामायण की ही उल्टी गंगा बहाने लगे। और ऐसा व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, IITN, बहुत पढ़े लिखे हैं। अरे इनसे ज्यादा एक तो बेपढ़ा लिखा गांव का आदमी अगर होगा ना, जिसने कभी पढ़ाई नहीं की हो, वो भी रामायण इनसे ज्यादा जानता होगा। ये सब हिंदू धर्म के जयचंद हैं। इन्हीं के कारण हिंदुओं की ये दुर्गति होती गई इस देश में। समय आ गया इनका बोरिया बिस्तर बांध के इनको भगा देने का। उल्टी गंगा रामायण की, वारे कपटीवाल। भारत का बच्चा बच्चा जिस रामायण के बारे में पूरी तरह ज्ञान रखता है, आप हैरान होंगे कि केजरीवाल जो भारत के नेता बनना चाहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और चीफ मिनिस्टर दिल्ली के 2 बार रह चुके हैं और आप पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, वो रामायण के बारे में कुछ नहीं जानते। मैं चाहता हूं दिल्ली के वोटर्स ये ध्यान में रखें, इस चीज को तो देखें कि जिस नेता को वो चुन रहे हैं उनको उनकी रामायण के बारे में पता नहीं है। My colleague Mohit Bhatt joins us on the broadcast with the details of why this is significant and the battle for the Hindu vote in Delhi. Well, Mohit, Arvind Kejriwal has often spoken about being a Hanuman Bhakt as well. A big gaffe there, the BJP saying this is clear proof that Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party is just a Chunavi Hindu. Well, yes, in fact, and today itself, Virendra Sachdeva, the Delhi BJP president, went to Hanuman Mandir, and we saw that how exactly he stated that for the well-being of Arvind Kejriwal, because he has given a vague reference of Ramayana, he has prayed at Hanuman temple. Now, the BJP is saying that the Aam Aadmi Party does not know anything about Ramayana, and they have hit out at Arvind Kejriwal, saying that he is a Chunavi Hindu, and we see that how this issue is being taken up by the BJP. To talk to us more on that, we have Praveen Shankar Kapoor, the Delhi BJP media head and the spokesperson. Sir, how exactly you see what has been said by Arvind Kejriwal, the reference that has been given by him, and what exactly he has stated while speaking at a public rally? देखिए, अरविंद केजरीवाल एक चुनावी हिंदू हैं, आपने स्वयं कहा,
मगर मुश्किल ये है कि अब वो पहले हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करते थे, अब हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखे हुए शब्दों से भी अपने हिसाब से खिलवाड़ कर रहे हैं। ज्ञान उन्हें है नहीं। हमें सबको याद है, अभी दिसंबर 2023 तक वो ये कहते थे मेरी नानी को तो मंदिर बनना ही पसंद नहीं, मेरी दादी को तो मंदिर बनना ही पसंद नहीं, वहां अस्पताल बना दो जी। अब जब से मंदिर बन गया तो वो दर्शन करने भी चले गए एक दिन। मगर कल जो उन्होंने बोला वो कोई हताशा नहीं थी, वो अज्ञान था। उन्हें ज्ञान ही नहीं है रामायण जी का। मैं नहीं मानता उन्होंने कभी रामायण पढ़ी हो। तो हनुमान भक्त कहते हैं। हनुमान भक्त ऐसे हैं कि अगर वो कंठस्थ करके हनुमान चालीसा सुना दें एक दिन तो हम उन्हें मान जाएंगे। अच्छा, एक चैलेंज दे रहे हैं आपकी हनुमान चालीसा? कोई चैलेंज नहीं, हनुमान जी की भक्ति में कोई चैलेंज नहीं। मगर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि उनको हनुमान चालीसा भी कंठस्थ नहीं हो। सर, एक सवाल ये भी है कि अब सवाल ये भी उठेगा क्या बीजेपी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाए, क्योंकि आज जो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं वो हनुमान मंदिर गए, उन्होंने कहा कि सद्बुद्धि के लिए वो प्रार्थना करेंगे। आज वो फास्ट पे भी हैं। आज एक ऐसा दिन है जब मैनिफेस्टो भी लॉन्च होगा, लेकिन ये बड़ा मुद्दा बन रहा है। आखिरकार लोग सवाल उठा रहे, सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार ऐसी गलती क्यों हुई अरविंद केजरीवाल से। चाहेंगे कि वो बाहर आए और इस पर एक्सप्लेनेशन दे और गलती हुई है तो माफी मांगे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मैं इस पे बिल्कुल भी राजनीति नहीं करना चाहता। मुझे ऐसा लगता है अरविंद केजरीवाल में अगर जरा से भी संस्कार हैं हिंदुओं वाले तो उन्हें एक बार सामने आकर के क्षमा मांग लेनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया इस पर। आम आदमी पार्टी की तो आदत है, जब घिर जाते हैं तो पिट जाते हैं और चुप हो जाते हैं। अगले दिन कोई नया झूठ ले आते हैं, अब कल कोई नया बड़ा मुद्दा बनाएगी बीजेपी? नहीं, हम बड़ा मुद्दा नहीं बनाएंगे। ये भावनाओं की बात है। मेरी हर्ट हुई है, आपकी भी हर्ट हुई है। So there you see Praveen Shankar Kapoor clearly stated that the BJP will not make it as a big issue, the election issue, but yes, the emotions of the sentiments of people have got hurt, and perhaps that is why we saw Virendra Sachdeva, Delhi BJP president, going in to the temple today, Hanuman temple today, and today he is on fast, and today is the day when BJP's manifesto would be released. So clearly, we see massive politics over this particular issue. We have to wait and watch what exactly the Aam Aadmi Party will have to say on this, Pratibha. Back to you. Okay, all right. So after the Aam Aadmi Party chief's gaffe, now the BJP has upped the ante against Arvind Kejriwal, saying Kejriwal has insulted Sanatan Dharm. That's the attack that has come in from the BJP. In fact, Mohit also spoke to Virendra Sachdeva, and here's what he said. We are right now being joined by the president of Delhi BJP, Virendra Sachdeva. Sir, आप आज हनुमान मंदिर आए हैं, क्या मांगा आपने? क्योंकि जिस प्रकार से आपने कहा था कि सद्बुद्धि के लिए हम प्रार्थना करने आए हैं, और कल जिस प्रकार से रामायण की व्याख्या की गई अरविंद केजरीवाल के बाद। नहीं, हम तो आज प्रभु श्री राम और हनुमान जी से प्रार्थना करने आए, क्षमा याचना करने आए हैं कि जिस तरह से हमारे श्री रामायण चरित्रमानस की गलत व्याख्या की गई, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से हमारे सनातन और हमारे हिंदू धर्म का मजाक बनाने की कोशिश की है, उसके लिए क्षमा याचना की है। ये आज तक अरविंद केजरीवाल सोने के मुंह से बाहर नहीं आ रहे। इनको शीश महल में सोने के सारे कमोड और वो वॉश बेसिन चाहिए थे, तो यहाँ भी कह रहे हैं कि सोने का हिरण रावण बन के आया था। तो ये हमारे सनातन और हमारे हिंदू धर्म का सीधा सीधा अपमान है कि हमारे व्याख्यान की आप गलत व्याख्या करते हैं, और इसीलिए आज हमने यहाँ प्रभु से क्षमा याचना भी की है, और आज का दिन पूरा दिन उपवास करेंगे ताकि इन अधर्मियों को सजा मिले। सर, एक सवाल जो बीजेपी उठाती रही है रोहिंग्या को लेकर, एलजी ने अब चिट्ठी भी लिखी है अथॉरिटीज को, कहा है कि एक्शन लिया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए, और सैफ के केस का उन्होंने हवाला दिया है। क्या कहेंगे? हम पहले दिन से कहते हैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों को पालने का काम करती है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब सैफ अली खां पे हमला होता है उसके 2 घंटे के भीतर अरविंद केजरीवाल उसके एक तरह से So that's the attack that has come in from the BJP. The BJP has said that this is the Chunavi Hindu lie of the Aam Aadmi Party that has been exposed. Mohit but continues to stay live with us. So Mohit, take us through why this is significant in the votes that have been cast in the previous elections as well. The BJP, though it did not manage to win too many seats in Delhi, has managed to hold on to its vote bank in Delhi and is only trying to increase it this time around in the elections. The Aam Aadmi Party, though, looking to cut into the vote bank of the BJP. Sir, एक सेकंड, एक सवाल लाइव पे लो। Well, yes, in fact, and again we'll directly speak to Virendra Sachdeva on your question, sir. जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने बोला, हमने आपकी अभी दिखाया कि किस प्रकार से आप हनुमान मंदिर गए थे, लेकिन क्या लगता है आपको, क्या बीजेपी इसको एक चुनावी मुद्दा बनाए? क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, और अरविंद केजरीवाल कहते हैं मैं तो हनुमान हूँ, हनुमान भक्त हूँ। नहीं, वो चुनावी हिंदू हैं और
सनातन को गाली देना, धर्म को गाली देना, ये अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है और इसको हम चुनावी मुद्दा नहीं कह सकते। ये असल में हमारे सनातन का विषय है और हर हिंदू जो हर सनातनी इस बात को समझता है कि हमारे धर्म को लेके कई बार अलग अलग रूप से व्याख्या करना, गलत धारणाएं बनाना, उस पर टिप्पणी करना, ये उन धर्मियों का काम है जिनके खिलाफ हमारी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। आप और अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो व्याख्या की गई है उसकी तरफ से अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया, कोई बयान नहीं आया, क्या कहेंगे? उस पर क्लैरिफिकेशन आएगा भी क्या? जो आदमी राम मंदिर का विरोध करता रहा हो, जो आदमी सनातन का विरोध करता रहा, उसके मुंह से तो वही बात निकलेगी जो उसके मन में है। इन्होंने कभी हमारे सनातन को, हमारे धर्म को पालने की बात तो की नहीं। तो अरविंद केजरीवाल अधर्मी है और ये हमेशा धर्म को गाली देने वाले लोग हैं। एक धर्म विशेष की राजनीति करते, उनकी मजबूरी है, वो करते रहें, लेकिन हमारे धर्म को कोई गाली देगा, सनातन को गाली देगा तो उसका रिएक्शन तो होगा। और आज पूरा दिन व्रत पे रहेंगे आप? आज मैं उपवास पे रहूंगा। So there you see Virendra Sachdeva speaking to us, and clearly Pratibha, the BJP president, had decided that today he'll be on fast, given the fact that how exactly Arvind Kejriwal has made mockery of Ramayana, and for that today he went to Hanuman temple and he will be on fast for the whole day. So clearly we see the politics being peaking on this particular issue, and the BJP has clearly hit out at the Aam Aadmi Party, saying that they are anti-Sanatan, they have heard the sentiments of Hindus, and yes, in a way BJP is taking this forward when it comes to the electoral politics too, and perhaps that is why Virendra Sachdeva is sitting on a fast today. Okay, all right, Mohit, thank you for joining us with those details.